تو جناب آج کی اچھی بات یہ ہے کہ وقت کی اہمیت امپورٹنس آف ٹائم، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ وقت چلا گیا اور گیا وقت ہاتھ نہیں آتا. کہتے ہیں کہ دنیا کی ہر کھوئی ہوئی چیز شاید دوبارہ مل جائے، لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جو ایک بار اگر ہاتھ سے نکل جائے تو کبھی واپس نہیں آ سکتا. اگر میں آپ سے بات کر رہی ہوں اس وقت جو چند سیکنڈز گزر گئے وہ گزر گئے. درست اب کوئی میرے پاس طریقہ ہی نہیں ہے کہ میں اپنے اس سیکنڈز کو واپس لاؤں، لیکن ٹائم مشین تو ہے ٹائم مشین لیکن ریالٹی نہیں ہے. تو یعنی کہ اگر ہم تھوڑا سا وقت کی اہمیت کو ذرا سنجیدگی سے سمجھیں گے نا تو ہی آپ زندگی میں یقین جانیے کامیاب ہو سکتا ہے. بالکل ایسی بات ہے. اچھا، وقت ایک ایسی نعمت ہے جو کہ امیر، غریب، چھوٹے اور بڑے سب کے لیے برابر ملتی ہے. کسی کو زیادہ نہیں ملتا، کسی کو کم نہیں ملتا. بس ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس سے کتنا فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ اس وقت میں کتنا سیکھتے ہیں. فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ کوئی اسے ضائع کر دیتا ہے، کوئی اس وقت کو کامیابیوں اور خوشیوں میں بدل دیتا ہے، سیکھنے میں بدل دیتا ہے. اور ہم اکثر کہتے ہیں نا کہ وقت نہیں ملا ہے ہمیں، اس چیز کا ہمیں ٹائم نہیں ملا، یہ سیکھنے کا ہمیں ٹائم نہیں ملا. تو لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وقت سب کے پاس برابر ہوتا ہے. تو اصل سوال یہ ہے کہ ہم اسے کس چیز پر خرچ کر رہے ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں، ہم کوئی نئی چیز سیکھ رہے ہیں، یا پھر ہم اس کو ایسے ہی ضائع کر رہے ہیں. اگر ہم اپنے دن کا کچھ حصہ والدین کی خدمت میں صرف کریں، پھر اس کے بعد علم حاصل کرنے میں کریں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنے اوپر بھی ٹائم لگائیں، کسی کی مدد کرنے میں لگا دیں، تو وہی وقت ہماری زندگی کے لیے نا سب سے قیمتی سرمایہ بن جاتا ہے. کیوں شیرین؟ یعنی کہ ایسے ہی ہے نا کہ صبح ایک ڈسپلن اپنی ساتھ اپنے وقت کے ساتھ کریٹ کر لیں. اب وہ کہتے ہیں نا کہ جو کامیاب لوگ ہوتے ہیں، جو کچھ بن گئے ہیں زندگی میں، جو بننا چاہتے تھے یا واٹ سو ایور، اگر آپ فار ایگزامپل چلیں بہت ایک مثال کے طور پر اگر آپ کسی کمپیٹیٹیو ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ کا جتنا آپ کے پاس وقت ہے نا اتنا ہی باقی کینڈیڈیٹس کے پاس بھی وقت ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ اگر آپ جاب پر جا رہے ہیں تو جتنا آپ کے پاس وقت ہے اتنا ہی آپ کے دیگر امپلائیز کے پاس بھی وقت ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ وہ کتنا اسمارٹلی اس وقت کا استعمال کرتے ہیں اور آپ اس وقت کو کتنا استعمال کر پا رہے ہیں. اب یہ بات یاد رکھیں کہ جو گھڑی کی سوئیاں ہوتی ہیں نا کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی ہیں. تو جو آج کا کام کل پر چھوڑ دیتا ہے کہ یہ دیکھیں گے کل ہوگا، وہ صرف کام ہی نہیں بہت سے مواقع بھی کھو دیتا ہے. کیونکہ آج خود سے ایک وعدہ کرنا بڑا ضروری ہے کہ ہر دن کو اپنا قیمتی سمجھیں، ہر لمحے کو بہتر انداز میں استعمال کریں. کیونکہ کامیاب زندگی نا برسوں سے نہیں بلکہ کہتے ہیں نا چند لمحوں کے درست استعمال سے بنتی ہے. ناظرین، اور دعا تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے وقت کی قدر کرنے، اسے کہتے ہیں نا نیکی اور بھلائی کے کاموں میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تو ہی ہم انشاءاللہ ایک بہتر انسان بن سکتے ہیں. سب سے پہلے مشرق وسطیٰ میں کشیدگی بڑھ رہی ہے. یمن کی الحدیدہ بندرگاہ پر متعدد فضائی حملے کیے گئے. خبر ایجنسی کے مطابق الحدیدہ اور بحیرہ احمر میں کمران جزیرے کو نشانہ بنایا گیا. سعودی اتحاد نے الحدیدہ پورٹ پر حملے کی تردید کر دی ہے، جبکہ حوثیوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ تجارتی جہاز کے لیے خطرہ بننے والے اہداف تباہ کیے ہیں. بالکل، تو اس حوالے سے کیا صورتحال ہے وہ بھی آپ تک پہنچائیں گے. امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران سے مذاکرات کی تصدیق کی ہے. کہا کہ ہم ان سے بات کر رہے ہیں، ایران ابھی تک ڈیل کے لیے تیار نہیں ہے. سعودی عرب پر ابراہیم ایکارڈز کا حصہ بننے پر انہوں نے زور دیا. اور ناظرین یہ دعویٰ بھی کیا کہ چین اور ایران کو بھی کسی صورت ہتھیار فراہم نہیں کرے گا. روس نے بھی تہران کو ہتھیار نہ بیچنے کی یقین دہانی کرا دی ہے. کیا ایگزیکٹلی صدر ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا، پروگرام میں آگے چل کر یہ بھی دیکھیں گے. اور ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ چین نے امریکی صدر ٹرمپ کے دعوے کی تردید کر دی ہے. چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران چین کا جامع اسٹریٹجک پارٹنر ہے. چین ایران کی خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے. تو بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے. بیک اینڈ فورتھ بیانات کا سلسلہ جاری ہے. اور جی ہوتا کیا ہے جب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں پہ کیا اثر پڑتا ہے اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل 5ویں روز بھی اضافہ ہو رہا ہے. پیٹرول مزید 3 روپے 66 پیسے اور ڈیزل 4 روپے 80 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے. پیٹرول کی اب جو فی لیٹر قیمت ہے وہ 335 روپے 18 پیسے مقرر کر دی گئی ہے اور ڈیزل 383 روپے 40 پیسے میں فروخت ہوگا. یہ جو یومیہ قیمتوں کا تعین ہے، مجھے لگتا ہے کل سے ہم اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ ہی نا تیل کی قیمتوں کا ذکر کر رہے ہوں گے کہ آج پیٹرولیم پرائسز کیا ہیں. اس کے علاوہ پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ٹیسٹ سیریز کا میدان آج سجے گا. میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام 7 بجے شروع ہوگا. بابر اعظم اور روسٹن شیز نے ٹرافی کی رونمائی کی ہے. فوٹو سیشن میں کھلاڑیوں نے زبردست پوز بھی بنائے ہیں. تو اس حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے. لیکن جی ابھی کیا ہو رہا ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں خطاب کر رہے ہیں، آپ کو دکھاتے ہیں. Telling rich people they are going to take away all of your money is going to be taken away. People are fleeing and they're fleeing in droves. We can't have that in this country.
it's becoming such a horrible and dangerous location that Ilhan Omar, one of my favorites, and her brother are thinking about moving together, very much in love. The video has surfaced recently of Ilhan giving a speech referring to World War II as World War XI. And they asked her about that. She thought she got it right. But I'm not surprised, because she's a low IQ person, and she's also a very dishonest person, and she ought to get the hell out of our country. She shouldn't be here. She shouldn't be in our country. She also calls her brother husband number one. Omar is reportedly being investigated for fraud. She revised her net worth. I was shocked to see that she was worth much more than $30 million. And then when the press got on her, she revised it slightly downward to less than 18,000. So she went from much more than 30 million to 18,000. And I know Democrats, and the word Democrat is something that's come into fashion. I changed the E with a U, and most people don't know that dumb has a B, so we don't have to worry about that. It's very quiet. I thought it was quite good, but I haven't gotten much credit for that. Fake news, good. Pocahontas, good. I won't say Lion Ted because he's on my side. I don't talk about past conquests, but we have a lot of them. I won't talk about them. They got a whole table full of Republicans there. They're saying, no, don't mention my frickin' name, will you please? But we've had a lot of good names. But the Democrats are there to destroy wealth. And मशरिक़ वस्ता में कशीदगी में इजाफा हो रहा है। यमन की अल हुदैदा बंदरगाह पर मुतादिद फ़िज़ाई हमले किए गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक अल हुदैदा और बहीरे अहमर में कमरान जजीरे को निशाना बनाया गया है। सऊदी इत्तेहाद की अल हुदैदा पोर्ट पर हमले की तरदीद सामने आई है। इसके अलावा हौसियों के ठिकाने को निशाना बनाने का दावा किया गया और कहा गया कि तिजारती जहाज़ के लिए ख़तरा बनने वाले अहदाफ तबाह किए हैं। ये भी वाज़े किया कि कौमी मफादात का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। बहीरे अहमर में सऊदी बहरी जहाज़ पर भी हमला। हुकाम के मुताबिक जहाज़ को कुछ मामूली नुकसान पहुंचा, जबकि अमला महफूज रहा है। तो ये तो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है। अब जी अमरीकी सदर का क्या मूड है? अमरीकी सदर की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक सामने आई है। कहा कि हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और उनसे बात कर रहे हैं। व्हाइट हाउस में तकरीब के दौरान सदर ट्रंप का कहना था कि ईरान अभी तक डील के लिए तैयार नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ईरान बातचीत में अब संजीदा हो रहा है। देखेंगे ईरान के साथ बातचीत का क्या नतीजा निकलता है। सदर ट्रंप ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में सूरत हाल बदल चुकी है। ईरान का जो असर रसूख है वो कम हो गया है। ईरान अब कोई मसला नहीं रहा। जनाब ये कह रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और सऊदी अरब के साथ न्यूक्लियर डील से मुतालिक सवाल हुआ उनसे, जिसके जवाब में सदर ट्रंप ने कहा कि सऊदी अरब के साथ उस वक्त तक कोई डील नहीं होगी जब तक वो अब्राहम एकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनता। अच्छा, इससे पहले आपको याद होगा सुबह उन्होंने गाहे बगाहे इस तरह की बात की, लेकिन अब उन्होंने बहुत वाज़े कर दिया, बहुत ही कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि तब तक हम सऊदी अरब के साथ डील नहीं करेंगे जब तक वो अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत नहीं। बिल्कुल ऐसी बात है। इसके अलावा अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की जानिब से जंग बंदी की नई पेशकश मुस्तरद कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक इराकी वज़ीर आज़म ने दौरा ईरान के दौरान वाशिंगटन की जानिब से सीज़ फायर की तजावीज़ पेश की थी। तफसीलात फौरी तौर पर सामने नहीं आ सकी हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक ईरान का मौक़िफ़ है कि आबने हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म होने तक आर्जी जंग बंदी में कोई दिलचस्पी नहीं है। तेहरान ने सिफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया है। ईरान के सीनियर ओहदेदार ने अल जज़ीरा से गुफ्तगू में कहा कि सालिस ममालिक के ज़रिए फ़रीक़ैन के दरमियान पैगामात का तबादला अब भी जारी है। वाशिंगटन इस वक्त शदीद मुश्किलात में घिरा हुआ है। मायूसी में ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाकर जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है। तो हमने जैसा कि पहले कहा कि शीरी, एक तरफ तो मुज़ाकरात की बात हो रही है जो कि डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, दूसरी जानिब ईरान की जानिब से तरदीद कर दी गई है और ये कहा गया है कि जब तक नाकाबंदी आपने हुर्मुज़ की नहीं ख़त्म की जाएगी तब तक कोई भी आर्जी तौर पर जो सेटलमेंट है हम उसके हक में बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही। और इसी तमाम तर तनाज़ुर में जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें जो राब्ते होते हैं ना बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं। ईरान का रूस और चीन से खत्े की सूरत हाल पर एक अहम राब्ता हुआ है, उसका क्या अहवाल रहा है वो भी प्रोग्राम में शामिल करते हैं। आपको बताते हैं कि अब्बास इराक़ची की चीनी और रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात हुई। अमरीकी हमलों पर तबादला ख्याल किया गया और ईरानी वज़ारत ख़ारजा का अमरीका पर मुआहदों की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम सामने आया।
واضح کیا گیا کہ امریکہ کو اپنا ہرمز کا غلط استعمال نہیں کرنے دیں گے، اور چین کے امریکی صدر کے دعوے کی تردید بھی اسی موقع پر سامنے آئی۔ چین نے واضح کیا کہ تہران چین کا جامع اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ چین ایران کی خود مختاری کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ تو یعنی کہ ایک کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی جو میں نے شروعات میں یہ کہا کہ جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، جو رابطے ہوتے ہیں، یہ ایک طرح سے کانفیڈنس کو ری اسٹیبلش کرتے ہیں۔ اچھا شیرین، ہم نے دیکھا کہ یہ جو سچویشن ہے نا بہت ہی کریٹیکل ہے اور کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی، کیونکہ مختلف جانب سے جو بیانات ہیں نا وہ بہت مختلف آ رہے ہیں۔ ایک طرف مذاکرات کی بات، دوسری جانب اس کی تردید اور مسترد کر دینا، پھر تیسری جانب جو ان کو کہا گیا ہے کہ ہتھیار نہیں ان کو فروخت کیے جائیں گے، ان کو نہیں دیے جائیں گے، اس بیان کی بھی تردید سامنے آنا، تو بہت ہی فریجائل قسم کے اور بہت ہی کریٹیکل قسم کی سچویشن بنتی جا رہی ہے۔ اچھا دیکھیں نا صوبیہ، مسئلہ پتہ ہے یہاں پر کیا ہے کہ چلیں یہ تو ایک کہتے ہیں نا کہ آگے نیگوسیشنز کی جانب بڑھ رہی ہے، لیکن جو اسپوائلر کا رول ہے وہ اس طرح کے جو معاملات کو مزید گمبھیر بناتا ہے۔ اب آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آباد کاروں کی دہشت گردی جاری ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو وہ اقدام کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے ذکر کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایک تو ہم سینیریو میں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کو ذکر کرتے ہیں، لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ صرف امریکہ اور ایران سے جڑا یہ معاملہ نہیں ہے۔ اب ہم جب بھی فلسطین کا ذکر کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اسرائیل نے جہاں پر ایران کے معاملے میں اسپوائلر کا کردار ادا کیا، تو وہاں پر فلسطین کا بھی جو ایک معاملہ رہا ہے، وہاں پر اسرائیل اپنے اسپوائلر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اب اسرائیلی دہشت گردی کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بلکہ آپ ویجولز دیکھیں ناظرین، یہ فائرنگ کر کے 4 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، اور فلسطینی شہریوں کی اس حوالے سے ظاہر مزاحمت سامنے آئی۔ ہم نے اس سے پہلے بھی دیکھا کہ بڑی ریزیلینٹ فلسطینی رہے ہیں، اور ایک فوجی سمیت 2 اسرائیلی اس نتیجے میں ہلاک ہوئے ہیں۔ واقعے کے بعد اسرائیلی فوج کی علاقے میں بڑے آپریشن کی تیاری بھی جاری ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ویجولز، یہ ملبہ ان کے ارمانوں کا، ان کے خوابوں کا، ان کے کہتے ہیں نا کہ پوری کی رہائشی مارکیٹ، اور یہ کتنے ہی وقت سے جاری ہے، کتنے وقت سے جاری ہے۔ دیکھیں یہ کوئی فوجی اہداف تو ہے نہیں، یہ کوئی ملٹری بیسز تو ہے سویلینز ہیں، یہ سویلینز معصوم لوگ ہیں، اس پر اسرائیلی اپنی دہشت گردی دکھا رہا ہے۔ بالکل درست بات ہے، اور اس تمام تر تناظر میں پیٹرولیم کی قیمتوں پر اثر پڑتا ہے۔ پاکستان میں بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا جو یومیہ تعین ہے وہ عوام کے لیے وبال جان بن چکا ہے۔ حکومت نے مسلسل 5ویں روز قیمتیں بڑھا دی ہیں۔ پیٹرول 3 روپے 66 پیسے فی لیٹر مزید مہنگا کر دیا ہے، جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 335 روپے 18 پیسے فی لیٹر تک جا پہنچی ہے۔ ڈیزل بھی 4 روپے 80 پیسے فی لیٹر مہنگا کیا گیا ہے، جس کے بعد ڈیزل کی نئی قیمت 383 روپے 46 پیسے فی لیٹر ہو چکی ہے۔ شہری حکومت پر پھٹ پڑے ہیں اور روز روز قیمتیں بڑھنے پر شدید ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں۔ قیمتوں میں بڑی کمی کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ فائدہ ہی نہیں ہے، کیا بولیں گے انسان، کچھ فائدہ ہے؟ بولنے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے۔ بہت مہنگائی ہے، حکومت کو خیال کرنا چاہیے، کبھی کم کر کے زیادہ کر دینا، زیادہ کر کے کم کر دینا، اور پھر بہت کم کر کے ایک دم زیادہ کر دینا، یہ خالی اپنی عوام کو دھوکا ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ کسی بھی ملک کے ماں باپ ہوتے ہیں، ماں باپ کو صحیح طریقے سے پتہ چل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو دھوکا دے رہے ہیں، تو میں بولوں گا برائے کرم اس طرح نہیں کریں، ایک لیول پہ مہنگائی کو لے کے آئیں تاکہ غریب بندہ جو ہے آرام سے اپنا گزر کر سکے۔ میں کہہ رہا ہوں ہمیں غریبوں کو مار دیا ان لوگوں نے، اور کیا کہہ سکتے ہیں یار، بس کیا بول سکتے ہیں یار، رات کو پیٹرول الگ ریٹ ہوتا ہے، جب صبح اٹھتے ہیں نا تو بس 20-30 روپے اور بڑھ جاتے ہیں۔ زیادہ تر میچورٹی جو ہے وہ بائکس پہ ہے، اسٹوڈنٹس ہیں، یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ان کا بھی یہی ہے کہ سارے جتنے بھی ہیں نا وہ پیٹرول کے لیے وہی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پریشان ہے ہر کوئی۔ انہوں نے نا ملک کو ختم کر دیا ہے، ٹھیک ہے، فروٹس ہر چیز کی قیمتوں میں ڈیلی اضافہ ہو رہا ہے، راشن لینے جائیں وہ چیزیں مہنگی ہیں، پیٹرول ڈیزل کی یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، ہر کاروباری کے لیے عذاب بنا ہوا ہے، کوئی بزنس نہیں کر سکتا، ہر بندہ پریشان ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جب خبر بھائی انداز نہ کی ٹیم نے لوگوں سے بات کی تو ظاہر ہے وہاں طالب علم بھی ہے، ذریعہ معاش کمانے والے بھی ہیں، نارملی کہتے ہیں نا جو بیچارے بریڈ اینڈ بٹر کمانے گھر سے نکلتے ہیں، روز کا جن کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے، دہاڑی دار وہ بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ رات میں کچھ قیمتیں ہوتی ہیں، صبح کچھ قیمتیں ہوتی ہیں،
लेट्स सी, अब बस दुआ गोई है अब, और क्या ही उम्मीद कर करते सकते हैं कि वो उम्मीद दिन करते बात करते हैं मौसम की। लाहौर में बादलों की इनिंग्स जारी है, शहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बाइस नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज तक बारिश का यही सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल, और मजीद क्या महकमा मौसमियात की जानिब से पेशगोई की गई है। बड़ी देर से सोबिया इंतजार कर रही है कि सालिक नवाज साहब बताइए हमें कि क्या महकमा मौसमियात का बताना है लाहौर के मौसम के हवाले से। जी बिल्कुल, लाहौर में रात गए शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला अब तक जारी है। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश हो रही है, जबकि आसमान पर इस वक्त भी गहरे बादल मौजूद हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिशों का ये सिलसिला आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा। बारिश के बाइस नशेबी इलाके और मेन शाहराहों पर पानी जमा होना शुरू हो चुका है, जबकि वासा का अमला भी अलर्ट खड़ा है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए दर्जा हरारत की, तो इस वक्त शहर का दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तेज़ बारिश के बाइस बहुत से इलाकों में लेस्को के फीडर ट्रिप होने की वजह से बिजली भी नहीं है और शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सालिक, लाहौर की सूरत हाल से मुतालिक आपने अपडेट किया। लेकिन जी कराची वाले भी तैयार हो जाएं, क्योंकि महकमा मौसमियात ने आज भी दिन में बारिश की पेशगोई कर दी है। सुबह सवेरे आसमान पर बादलों के डेरे हैं। गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार कर दिया है। जब शहर क़ैद के बासी सिर्फ बारिशों के लिए नहीं और बहुत सारी चीज़ों के लिए तैयार हो जाएं समझ तो गए होंगे आप, लेकिन चलें जी मौसम भी इंजॉय करें फिर। अच्छा जी, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं कराची से ज़िशान मुगल से। जी ज़िशान। जी बिल्कुल, कराची शहर में सुबह सवेरे बादलों का राज बरकरार है, जबकि आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि जो गुज़श्ता रोज़ मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई, उसमें सबसे ज़्यादा जो बारिश रिकॉर्ड की गई है वो कराची का इलाका सरजानी है। इसके अलावा मुख्तलिफ इलाके हैं जिनमें साइड एरिया और साथ ही साथ सदर, ओल्ड सिटी एरियाज, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद और इसके अलावा मलीर के कुछ एरिया शामिल हैं जहाँ पर बारिश हुई। सबसे ज़्यादा जो बारिश है वो सरजानी में 5.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि आज भी कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात का मजीद बताना है कि इस वक्त जो शहर में हब्स की कैफियत बरकरार है, हवाएँ जो हैं इस वक्त 10 नॉट फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का मजीद कहना है कि कराची में इस वक्त जो हब्स की कैफियत है इसके बायस गर्मी की शिद्दत जो है वो ज़्यादा भी महसूस की जा रही है। साथ ही साथ जो हवा में नमी का तनासब है वो इस वक्त 75% है, जिसके अलावा जो सिंध गवर्नमेंट है उनकी जानिब से तमाम तर मुतल्लिका इदारों को हाई अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जी आगे बढ़ते हैं। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में खतरे की घंटी बज गई है। हालिया, चनियोट, कोट मोमिन और डस्का में सैलाबी सूरत हाल है। खड़ी फसलें तबाह, राब्ता सड़कें ही नहीं, कई आबादियां डूब गईं। दरियाए चनाब में पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने से हालिया, चिनियोट, कोट मोमिन और डस्का से मुल्का कई इलाके सैलाब की जद में। नाला डेक में नंदपुर के मकाम पर शगाफ पड़ने से मुताद्दिद देहात डूब गए, शहरों से जमीनी राब्ता कट गया। चिनियोट के मौजा सांभल में भी तबाही, फालिया का गांव खमखोट भी मुतासिर। मौजा सांभल है हमारा करीबी गांव है, ये ज़मीनी कटाव की वजह से अब मुकम्मल तौर पर वो गांव जो है वो दरिया बोर्द हो चुका है। गुज़श्ता 12 सालों से अपील कर रहे हैं कि यहाँ पर बंद बनाया जाए या कोई मुस्तकिल हिफाजती इकदाम किए जाएँ, लेकिन यहाँ पर हुकूमतें जब फ्लड आता है तो ये कह के चले जाते, वादे करके चले जाते। बंद जेडे पिछले साल तो टुटे नो, कोई ना मरम्मत नहीं करता पे, उल्टा बांधने जेडे नो मतलब घटा छड़े ना। कोट मोमिन के इलाके मठ रांझा में जमीनी कटाव तेजी से जारी। अगे साडे मकान ढह गए, पिछे जमीनें ढह गई, असि मजलूम हो किथे जावी, कोई साडा दसो, कोई हाल साडा एक गल है। दरियाए सिंध में भी पानी मुसलसल बढ़ रहा है। जमीनी कटाव से करोड़ लाल ईसन के मौजाजात में सूरत हाल संगी। अब तक 20 से जायद बस्तियां डूब चुकी, स्कूल और अस्पताल भी ना बचे।
खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं, जहां भी बारिशों से तबाही हम देख रहे हैं। ज़िला खैबर के इलाके अकाखेल में मकान की छत गिर गई, 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। ज़िला भर में 37 घरों को नुकसान पहुंचा है। सूबे में 19 जुलाई से अब तक मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई है। या कुछ विजुअल्स भी आप देख सकते हैं, ये मवेशी आप देख सकते हैं कि किस हद तक उन्हें भी मुश्किलात से वो दो चार हैं। ज़ाहिर है लोग इस वक्त ये जो माल मवेशी है वही बचाने की कोशिश करते हैं। जब नकल मकानी की बात होती है, घरों के अंदर तक आप देख रहे हैं, इन गलियों तक बाकायदा जो पानी है वो दाखिल हो रहा है, जिससे ना सिर्फ इनके मवेशी मुतासर हो रहे हैं बल्कि पूरे आप ये देखें कि जो इमारतें हैं उनके अंदर तक जो है वो उनके घरों तक पानी दाखिल हो चुका है। ये वो सैलाबी सूरत हाल है। जो कहते हैं ना, ये कोई दरिया तो नहीं है, लेकिन गलियों में आप लोगों को कुछ यही सूरत हाल देखने को बिल्कुल ऐसा ही है। PDMA के मुताबिक मुख्तलिफ हादसात में 29 अफराद जख्मी भी हुए हैं। बारिशों और फ्लैश फ्लडिंग से 10 घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए, जबकि 47 को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा। बारिशों और फ्लड से पेशावर, नौशहरा, खैबर, वज़ीरिस्तान, बाजोड़, शांगला, सवाबी, चित्राल ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, जबकि दीर, एबटाबाद, मानसहरा, हरीपुर, कोहिस्तान में भी बारिशों से नुकसानात हुए हैं। और हम यहाँ देख रहे हैं कि PDMA, NDMA की जानिब से एडवाइजरीज बार बार जारी की जा रही हैं और यही कहा जा रहा है कि अगर वो इलाका ठीक नहीं है, सेफ नहीं है, तो वहाँ से नकल मकानी कर ली जाए। एहतियात बरतें हैं। ज़रूरत इसी बात की है कि मानसून के इस तगड़े स्पेल में जो इंतज़ामिया आपसे कह रही है उनके साथ ज़रूर ताउन करें, अपना ख्याल रखें। जी जनाब, थोड़ी सकाफत के हवाले से भी बात कर लेते हैं। मुल्तान की हज़ारों साल पुरानी तहजीब की दिलकशी आज भी बरकरार है। ऊंट की खाल से तैयार किए जाने वाले रंग बिरंगे लैंप, गुलदान और दीगर आराइशी सामान इसी तहजीब की एक खूबसूरत पहचान है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहसिन अली। मुल्तान में ऊंट की खाल पर नक्शो निगारी का फन सदियों पुराना है। उस्ताद अब्दुल रहमान 40 साल से इंतहाई महारत और बारीक बीनी से ऊंट की खाल से खूबसूरत लैंप, गुलदान और दीगर आराइशी अशिया तैयार कर रहे हैं। मुल्तान कदीमी नकाशी को तो लेके चलता आ रहा था हमारे बुजुर्ग शाही किलों पे, शाही इमारतों पे, तो उस्तादा ने फिर इसको ऊंट की खाल के ऊपर लेके आए 1910 में। उसके बाद से अब तक इसमें सैकड़ों डिज़ाइन बन चुके हैं। ऊंट की खाल की मजबूती और कम चिकनाहट इसे नक्शो निगारी के लिए निहायत मौजू बनाती है। यही वजह है कि इन पर बनाए गए दिलकश डिजाइन देर पा भी होते हैं और देखने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे भी करते हैं। लैंप जी बहुत अच्छे हैं और उसके अलावा ये मुख्तलिफ रंगारंग से हाथ से बने हुए लैंप हैं जो घर की सजावट के लिए बहुत जो है चार चांद लगाने के लिए काफ़ी हैं। बहुत ही अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, स्पेशली ना कैमल की खाल से बनी हुई हैं, तो ये मैं परचेज़ करने के लिए अपने घर के लिए कि मैं अपने ड्राइंग रूम को खूबसूरत से खूबसूरत बना सकूं। दस्तकारी के इस कदीम फन से तैयार होने वाली आराइशी अशिया 1000 से 50,000 रुपए तक फरोख्त होती हैं। कैमरामैन चौधरी महबूब के साथ मोहसिन अली, सामा, मुल्तान। कितने प्यारे और खूबसूरत लैंप से, और जैसे कि आपने कहा ना कि ऊंट की खाल से बने, यानी कि आप देखिए कि इसमें यूनिकनेस भी कितनी ज़्यादा है, ट्रेडिशन बहुत ज़्यादा है और हमारी जो पहचान है, हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के हर इलाके की अलग अलग पहचान है। इन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक। ईरान मुआहिदा करना चाहता है लेकिन अभी मुनासिब वक्त नहीं है, ट्रंप की जानिब से ऐसा कहा गया। मजीद उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात कर सकते हैं और उनसे बात कर रहे हैं। मशरिक़ वस्ती में सूरत हाल बदल चुकी है, ईरान का असर और रसूख कम हो गया है और सऊदी अरब से अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनने तक डील नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की है। चीन और रूस ने ईरान की मदद की तो बहुत बुरा होगा। तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो कि स्टेज संभालते हैं, अपने डाइस पर आते हैं और जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनके वो बड़े अहम होते हैं। उनका क्या कहना था एग्जैक्टली, आप लोगों को भी सुनवाते हैं। By the way, they are talking to us right now. They'd love to make a deal. I don't think they're ready to. I don't think it's time yet, but I'm willing to listen. But they cannot have a nuclear weapon. We don't want to see Washington, D.C. or any of our cities or Israel or, frankly, the Middle East destroyed with a nuclear weapon. तो जी आगे बढ़ते हैं, कुछ मौसम की बात कर लेते हैं। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि शहर कायद में भी आसमान पर बादलों के डेरे हैं। अब शहर कायद के बासी सवाल ये कर रहे हैं कि ये बरसेंगे जो बादलों के डेरे ये बरसेंगे कब।
सूरत-हाल जानेंगे समा के नुमाइंदगान से। सालिक नवाज हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से जीशान मुगल हमारा साथ देंगे शहर कायद से। तो सबसे पहले वैसे सोबिया कहाँ जाना चाहिए? मेरा ख्याल है लाहौर की बात कर लें। हाँ, लाहौर एक हफ्ते से बारिश के मसले ले रहा है ना, इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, तो शहर कायद के जख्मों पे आप मजीद नमक छिड़क रही हैं। चलें सालिक, आप बताइए जी कैसा मौसम है शहर लाहौर का? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम तो काफ़ी खुशगवार है। रात गए जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था वो वक्फे से जारी है और ये बारिश का सिलसिला गुज़िश्ता चंद रोज़ से जारी है, जबकि बारिश के बाइस जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी मौजूद था और रात गए जो बारिश हुई उसके बाद इन नशेबी इलाकों में दोबारा से पानी जो है उसमें इजाफ़ा हो गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो बारिश का सिलसिला है आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेगा, जबकि आज भी महकमा मौसमियात का कहना है कि शहर में तेज़ बारिश मुतवक्के है। जबकि बारिश के बाइस नशेबी इलाके और मेन शाहराएँ जो हैं वहाँ पर बारिश का पानी मौजूद है, जबकि बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लेस्को के फीडर्स ट्रिप होने के बाइस बिजली मौजूद नहीं है, जिसने शहरियों की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। जी अच्छा सालिक, ये बताएगा कि दीगर और कितने दिन तक ये सिलसिला जारी रहेगा? क्या पेशगोई की गई है इस हवाले से? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात का कहना है कि मानसून का ये जो सिलसिला है ये आइंदा चंद रोज़ तक मज़ीद जारी रहेगा और शहर में मज़ीद बारिशें भी मुतवक्के हैं, जबकि अर्बन फ्लडिंग का भी ख़तरा है। जबकि महकमा मौसमियात ने शहरियों को भी खबरदार किया है कि वो बिला ज़रूरत सफ़र से गुरेज करें, जबकि शहर में क्योंकि नशेबी इलाके जो हैं वहाँ पर बारिशी पानी मौजूद है और एक रोज़ पहले भी हमने देखा कि बारिश के बाद लाहौर की सड़कें जो हैं वो तालाब का मंजर पेश कर रही थीं। बहुत से इलाकों में लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा और महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले चंद रोज़ में मज़ीद बारिशें जो हैं वो मुतवक्के हैं। ठीक है, आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद बारिशें भी मुतवक्का है। सालिक नवाज लाहौर की क्या सूरत हाल है बड़ा तफसील से सालिक ने हमें बताया। सालिक साथ ही मौजूद रहेगा। जीशान आप बताइए जी, क्या लग रहा है बादल जो देख रहे हैं शहर कायद के बासी वो बरसेंगे भी या नहीं बरसेंगे? महकमा मौसमियात का क्या बताना है? जी बिल्कुल, सुबह सवेरे से ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है बादलों का राज तो बरकरार है, लेकिन आज भी महकमा मौसमियात का यही कहना है कि मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। लेकिन गुज़िश्ता रात हमने देखा कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जिसमें साइड एरिया है, नाज़िमाबाद है, नॉर्थ नाज़िमाबाद का इलाका शामिल है, न्यू कराची है, इसके अलावा गुलशन इकबाल और साथ ही साथ गुलिस्तान जौहर, ओल्ड सिटी एरियाज़, यहाँ पर जो है कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश देखने को मिली और इसके बाद जो है मौसम खुशगवार हो गया। इस वक्त भी हब्स की जो कैफियत है वो बरकरार है। कुछ वक्फे के बाद जो है हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं और कराची के शहरी जो है मुंतज़िर हैं इस बात की कि कराची में जो पहले गुज़िश्ता साल जो तेज़ बारिश हुई थी उसी तरह आज भी अब बादल बरसें और मौसम जो है वो खुशगवार हो जाए। महकमा मौसमियात ने हमारी जब बात हुई इस हवाले से तो उनका ये कहना है कि इस वक्त का जो मौजूदा दर्जा हरारत है तकरीबन 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। दिन भर जो दर्जा हरारत है वो 32 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। साथ ही साथ शहर में इस वक्त जो हवाएं हैं वो तकरीबन 10 नॉट फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। इस वक्त शहर में जो हवा में नमी का तनासुब है वो 75% बताया गया है और महकमा मौसमियात का यही कहना है कि कराची के मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर आज हल्की बारिश या तो फिर तेज़ बारिश हो सकती है। और इसके अलावा जो हमारी बात हुई है सिंध गवर्नमेंट जो मुतल्लिका हुकाम से, तो उनका ये कहना है तमाम तर अमले को हाई अलर्ट रखा गया है, कोई भी ऐसी सूरत हाल पैदा होगी तो फौरी तौर पर मौसर कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि फौरी तौर पर मौसर कार्रवाइयाँ की जाएं, कोई भी हमें मिसहैप होते हुए ना दिखे। तो जीशान मुगल और साथ ही सालिक नवाज हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बेहद शुक्रिया और मौसम की सूरत हाल से हमें वो आगाह कर रहे थे। बात करते हैं कि भारत की आबी जारी है और जो मूसलाधार बारिशें हैं वो भी जारी हैं। दरिया चनाब बिफरने लगा है। हाफजाबाद में हेड कादराबाद के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब इस वक्त बरकरार है। मजीद बात कर लेते हैं समा के नुमाइंदे इम्तियाज़ अहमद ताज से। इम्तियाज़ बताइए क्या सूरत हाल देखने को मिल रही है आबी जारियत की वजह से? जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ दरिया चनाब हेड कादराबाद के मुकाम पर। भारतीय आबी दहशतगर्दी की वजह से यहाँ पर सैलाबी सूरत हाल जो है वो बरकरार है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हैवी रेन भी हो रही है और महकमा इरीगेशन के मुताबिक यहाँ पर इस वक्त पानी जो है उसकी आमद 1,83,000 क्यूसिक है और अखराज जो है 1,71,000 क्यूसिक है। अगर दरियाई पट्टी के इलाके की बात की जाए तो वहाँ पर
ये जो पानी है ये 3 दिन से मुसलसल जो है ज़मीनी कटाई कर रहा है, जिससे यहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो शदीद परेशान है। लोगों का जो चारा है, वो जान मुंजी की फसल है, वो काफ़ी ज़्यादा इससे मुतासर हुई है। और जो बूंद फाजिल गाँव है वहाँ पर जो है वो लोगों के घर भी मुदम हुए हैं और बहुत ज़्यादा कटाई हुई है। डाउन स्ट्रीम पर गुज़श्ता साल एक टू क्रीक पुल जो है वो सैलाबी पानी में बह गया था। तो दूसरा मैं बताता चलूँ कि जो दरियाई पट्टी के रहने वाले लोग हैं उनमें शदीद एक खौफ भी पाया जाता है, क्योंकि गुज़श्ता साल यहाँ से 10,70,000 का जो रेला गुजरा था उसने लोगों की हज़ारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह की थी, घर बार माल मवेशी जो है वो बहा के ले गया था। लोगों का पिछले साल का नुकसान भी अभी तक पूरा नहीं हुआ। जब इस इलाके में हमारी लोगों से बात हुई तो वो शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए शुक्रिया आपका। हालिया में दरिया शनाब के किनारे मौजूद बंदों की मुरम्मत ना हो सकी है और आबी रेले नशेबी इलाकों में दाखिल हो रहे हैं। सैकड़ों एकड़ पर धान की तैयार जो फसल है वो मुकम्मल तौर पर ज़ेरे आब आ गई है। तफसील जानते हैं नुमाइंदा समा आबिद नवीद असलम से। जी आबिद, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ इस वक्त फालिया के नवाही गांव खम कला में दरिया चनाब के किनारे पर, जहां पे इस वक्त पानी की आमद जो है वो 1,97,145 क्यूसिक है, जबकि इसका अखराज जो है 1,82,145 क्यूसिक है। और इस वक्त इस गांव के रहने वाले मेरे साथ मौजूद हैं कि यहाँ पे पिछले हालिया आने वाला जो सुपर फ्लड था जिसमें यहाँ पे काफ़ी नुकसान किया और यहाँ पे बनाए जाने वाले बांध जो थे वो टूट फूट गए, लेकिन अभी तक उनकी मुरम्मत नहीं की जा सकी। पिछले साल जो 1700 फुट लंबा बांध था वो सैलाब की वजह से टूट गया, लेकिन इस एक साल में भी उन बांध की मुरम्मत ना की जा सकी, जिसकी वजह से उनके गांव का सैकड़ों एकड़ रकबा जो है वो कटाव में आ गया है और धान की फसल जो है वो बुरी तरह मुतासर हुई है। जी दूसरी जानिब झंग में दरियाए चनाब का सैलाबी पानी तेजी से दरिया के करीबी आबादियों में दाखिल होना शुरू हो गया है। 15 से जायद मौजाजात सैलाबी पानी की लपेट में आ चुके हैं। समा के नुमाइंदे अरशद खान से मजीद बात कर लेते हैं। अरशद, आपने क्या सूरत हाल देखी? अच्छा, बिल्कुल दरियाए चनाब में पानी की सतह में इजाफे के बाद ज़िले इंतजामिया भी जो है वो मुतहरिक हो गई है। हमारे साथ इस मौजूद हैं डिप्टी कमिश्नर बाबर साहब, हम उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा क्या इकदाम किए जा रहे हैं आप तक और जो इंतजामिया की जानिब से क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बताना चाहूँगा कि इस वक्त जो वाटर लेवल्स हैं चिन्योट ब्रिज पे वो कोई 2,45,000 क्यूसेक के करीब है। इसी तरह त्रिमू पे 1,75,000 हैं। इस वक्त हम दरियाए चनाब पे ही खड़े हैं। इरिगेशन का यहाँ पे कैंप लगा हुआ है। जंग के फील्ड अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं, इरिगेशन के एसई साहब, हमारे एक्सीन्स भी यहाँ पे मौजूद हैं और जो तमाम अरेंजमेंट्स हमने करने हैं वो तमाम हो चुके हुए हैं। हमें पिछले 2 दिन से इसकी जो तैयारी है वो जारी है और अभी कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि किसी किस्म का कोई पैनिक क्रिएट किया जाए या इमरजेंसी सिचुएशन हो। तमाम चीज़ें अंडर कंट्रोल है। हमारी रेस्क्यू की टीम्स भी मौजूद हैं, इसी तरीके से हेल्थ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स की टीम्स भी मौजूद हैं और जो हमने रिलीफ कैंप्स लगाने थे उनको भी लगाया गया है। ऑल्दो वो इस वक्त एक्टिव नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी पानी जो है वो सिर्फ हमारे जो खेत हैं वहाँ पे चंद मौज़ों के अंदर 1 से 2 फुट मौजूद है। अच्छा, बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर बाबर साहब का यही कहना है कि किसी भी हंगामी सैलाबी सूरत से निपटने के लिए तमाम इदारे जो है मुकम्मल तौर पर जो है वो अलर्ट हैं। दरियाए चनाब में इस वक्त दरमियाने दर्जे का सैलाब है। आबी रेला आबादियों को नुकसान पहुंचा रहा है। लाहौर रोड पर दरियाई कटाव के बायस जो ब्रिज है वो बहुत ही बुरी तरह मुतासिर हुआ है और ज़मीनी कटाव की वजह से राब्ता मुनक़ता हो चुका है। इस वक्त समा के नुमाइंदे डॉक्टर मुज़म्मिल हुसैन सैलाब मुतासर इलाकों में मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुज़म्मिल, बताइएगा क्या कहना है सैलाब मुतासरीन का? जी बिल्कुल, रवां साल दरियाए चनाब में आने वाले पहले सैलाबी रेले ने चिन्योट के मुतअद्दिद इलाकों में तबाही मचाई है। दर्जनों देहात जो हैं ज़ेरे आब आए हैं। लाहौर रोड पर भी, जंग रोड पर भी, इसी तरह लालिया के मुतअद्दिद इलाके जो है ज़मीनी कटाव इख्तियार करते जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये चिन्योट लाहौर रोड का इलाका है, बुर्ज उमर, जहाँ का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते हो चुका है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं। जी बताइएगा कितना नुकसान आप लोगों को? बहुत बड़ा ज़्यादा नुकसान हो चुका है जी। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਨਾਬ ਫਸਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੁੱਬ ਗਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਲਈ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਮਰ ਦਾ ਬੁਰਾਈ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਾਬ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੋ ਜੀ, देख रहे हो जनाब अली मरियम साहब की साड़ी अपील है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना है कि इनकी खड़ी फसलें जो हैं, तैयार फसलें तबाह हो गई हैं। इसके अलावा इस लालिया का जो इलाका है मियांवाल, वहाँ पर भी ज़मीनी कटाव इख्तियार किया गया है और 90% से ज़्यादा जो इस आबादी का रकबा है वो भी दरिया बुर्द होकर रह गया है। जी
اچھا جی، لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے نشیبی علاقوں میں دریائے سندھ کی تباہ کاریاں جاری ہے. دریا نے سونا اگلتی جو زمینیں ہیں نا ان کو نگلنا شروع کر دیا ہے. آپ سوچیں کہ کیا گزر رہی ہوگی یار. بالکل صحیح بات ہے. اور اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندے محمد آصف سے. جی آصف بتائیے کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں لیا کی تحصیل کروڑ لال ایسن کے علاقے موزہ شینوالا میں موجود ہوں، جہاں پر دریا سندھ کا زمینی کٹاؤ جو ہے وہ تیز ہوتا جا رہا ہے. اور اگر بات کی جائے تو لیا اور کروڑ لال ایسن کے جو نشیبی علاقے ہیں وہ اس وقت دریا سندھ کے زمینی کٹاؤ کی زد میں آ چکے ہیں. یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہاں پر تل، کماد اور دیگر جو تیار کھڑی فصلیں ہیں وہ اس وقت دریا برد ہو رہی ہیں، جو کہ کسانوں کی سال بھر کی جو محنت ہے وہ چند لمحوں میں جو ہے دریا سندھ جو ہے وہ نگل رہا ہے. یہاں پر اگر بات کی جائے تو اس وقت موزہ شینوالا میں بھی جو ہے دریا سندھ کا جو زمینی کٹاؤ ہے وہ دن بدن شدت اختیار کرتا جا رہا ہے. اور یہاں پر اگر لیا کے نشیبی علاقوں کی بات کی جائے تو لیا کے نشیبی علاقے موزہ سمرا نشیب کی بستی کنجال، موزہ تھن کلاں اور دیگر جو کئی مقامات ہیں وہاں پر دریا سندھ کا جو زمینی کٹاؤ ہے اس میں تیزی آ چکی ہے. وہاں پر جو 2 سرکاری سکول ہیں وہ بھی دریا کٹاؤ کی زد میں آ چکے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر موزہ بیٹ مونگڑ کی بات کی جائے تو وہاں پر گزشتہ سال جو ہے ایک پولیس چیک پوسٹ تھی جو کہ ریورائن چیک پوسٹ تھی، وہ بھی دریائی کٹاؤ کی نظر ہو چکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہزاروں ایکڑ سونا اگلتی جو زمینیں ہیں وہ دریا سندھ جو ہے وہ نگل رہا ہے. لیکن جو مقامی انتظامیہ ہے ان کی جانب سے یہاں پر ابھی تک کوئی بھی عملی اقدامات جو ہے وہ نہیں کیے گئے. جو کسان ہیں اور یہاں پر جو علاقہ مکین ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت اپنے جو قیمتی مکانات ہیں ان کا ملبہ اکھاڑ کر محفوظ مقامات کی جانب جو ہے وہ نقل مکانی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ. دوسری جانب گلگت بلتستان میں حالیہ بارشوں اور سیلابی صورتحال نے بڑے پیمانے پر نقصانات پہنچائے ہیں. ضلع گانچے میں بھی سیلاب کے باعث 7 پلوں، کھڑی فصلوں اور درختوں اور دیگر انفراسٹرکچر کو شدید نقصان پہنچا ہے. ضلعی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں امدادی اور بحالی سرگرمیوں میں مصروف نظر آ رہی ہیں. اس وقت ہمارے نمائندے ذوالفقار علی صدیقی ڈپٹی کمشنر گانچے کے ہمراہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جی ذوالفقار بتائیے. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان کے آخری ضلع گانچے میں، اور حالیہ بارشوں کے بعد یہاں پر ندی نالوں اور دریاؤں میں سیلابی صورتحال سے دوچار ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ڈپٹی کمشنر گانچے ولی اللہ فلاحی صاحب. یہ جو ریسنٹ جو رین اسپیل تھا اس کے بعد ہمارے اوور آل انفراسٹرکچر کی میں بات کروں تو 7 بریجز ہمارے ڈیمیج ہو چکے ہیں، 2 گاؤں ہمارے کٹ آف ہو چکے ہیں، جس میں آج گربچنگ جو کھپلو نالے کے اوپر ہم بیٹھے ہیں. باقی جو غرسے گاؤں ہیں ادھر 12 ہاؤس ہولڈس کو ہم نے شفٹ کیا ٹینٹ ولیج میں، اور وہ اپنے ریلیٹیوز کے پاس بھی رہ رہے ہیں. تو جو ضلعی انتظامیہ ہے اویلیبل مشینری جو DDMA کی ہے، CNW کی ہے، پاک آرمی کی ہے، ان کو اور باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پرائیویٹ جن کی مشینری ان کو لے کے ہم ٹائملی ریسپونڈ کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ غرسے میں کئی ایسے ٹینٹ ہاؤس ہی بنائے گئے ہیں جہاں پر متاثرین کو رکھا گیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے، اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا. پشاور میں موسمیاتی تبدیلی اور قدرتی آفات سے نمٹنے اور جدید جیو اسپیشل ٹیکنالوجی کے استعمال پر سمپوزیم ہوا. ماہرین نے مؤثر موسمیاتی گورننس اور سائنسی بنیادوں پر منصوبہ بندی کی ضرورت پر بھی کافی زور دیا. بالکل ایسا ہی ہے، اور اسی پر دیکھتے ہیں عرفان موسیٰ زئی کی یہ رپورٹ. پشاور میں اسپیس فار کلائمیٹ کے عنوان سے منعقدہ سمپوزیم میں اسپارکو، خیبر پختونخوا حکومت، جامعات اور مختلف متعلقہ اداروں کے ماہرین نے شرکت کی. مقررین کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے خطرات سے نمٹنے کے لیے جدید جیو اسپیشل ٹیکنالوجی اور سیٹلائٹ ڈیٹا کا استعمال وقت کی اہم ضرورت ہے. کلائمیٹ چینج کو تو ہم روک نہیں سکتے، ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنا ہے، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہم کہ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے ہم کلائمیٹ چینج کو پہلے سمجھیں، جس کے اندر ہم سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کو یوز کرتے ہوئے اسینشیل کلائمیٹ ویریبل کہ کہاں پہ جنگلات کے اندر چینجز ہے، ریور کورسز کے اندر چینجز ہے، گلیشیئر کے اندر چینجز ہے. ماہرین کے مطابق سیٹلائٹ ڈیٹا جنگلات، گلیشیئر، آبی وسائل، شہری توسیع اور قدرتی آفات کی بروقت نگرانی میں مؤثر کردار ادا کر رہا ہے. مقررین نے موسمیاتی تبدیلی سے نمٹنے، ماحولیات کے تحفظ اور قومی سطح پر اداروں کے درمیان مؤثر تعاون کو وقت کی اہم ضرورت قرار دیا. یہ ایک الارمنگ سچویشن ہم خود کریٹ کر رہے ہیں.
कई जो रिवर सवात के किनारे भी कुछ इस तरह की सेटलमेंट्स हैं जो कि मतलब उनके जो जिन्होंने वो सेटलमेंट बना दी, जो उधर वो लिविंग है वो हिमसेल्फ भी डेंजर है और दूसरों के लिए भी वो डेंजर काज कर सकता है। माहिरीन का कहना है कि साइंसी डेटा और जदीद टेक्नोलॉजी को हुकूमती पॉलिसियों का हिस्सा बनाकर न सिर्फ कुदरती वसाइल का बेहतर तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन है बल्कि मौसमियाती तब्दीली के असरात और कुदरती आफात के ख़तरात को भी मौसर अंदाज में कम किया जा सकता है। कैमरामैन आबिद खान के साथ इरफान मुसाज़ी, समा, पेशावर। और अब बात करेंगे जी महंगाई के तूफान की। महंगाई बेकाबू हो गई है जनाब। कराची में टमाटर के आसमान से बातें करती कीमतें बरकरार है और मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 400 से 450 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रहे हैं। सब्जियों की कीमतों ने भी शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया है। मजीद जानते हैं रनछोड़ लाइन बाजार में मौजूद समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइए क्या तफसीलात हैं? जब बिल्कुल जो टमाटर हमें 3 से 4 हफ्ते पहले तक 100 के 4 किलो में दस्तयाब थे, अब उनकी कीमत सुनकर के टमाटर के रंग की तरह चेहरा लाल हो जाता है। शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में टमाटर इस वक्त 400 से 450 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। टमाटर की आज की जो सरकारी कीमत है वो 310 रुपये किलो मुकर्रर की है सरकार ने, लेकिन सरकार अपनी इस रेट पर कहीं भी टमाटर फ़रोख्त कराने में कामयाब होती नज़र नहीं आ रही। अगर हम बात करें दीगर सब्ज़ियों की तो इस वक्त टमाटर के बाद भिंडी, करेला और टिंडा जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट है कि जो भिंडी का सरकारी रेट 161 रुपये किलो मुकर्रर है, लेकिन शहर के मुख्तलिफ बाज़ारों में भिंडी भी 200 रुपये फ़ी किलो में बेची जा रही है। करेले का 138 रुपये का रेट है सरकारी, लेकिन वो भी 150 रुपये फ़ी किलो में बेचा जा रहा है। जो बाज़ार आने वाले ख़रीदार हैं वो सबसे ज़्यादा टमाटर की महंगाई पे परेशान है। उनका यही कहना है कि अब सलाद की रौनक ख़त्म हो चुकी है क्योंकि टमाटर बेइंतहा महंगा हो चुका है और सालन में टमाटर की जगह वो दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों ने शिकवा यही किया है कि हुकूमत कीमतों पर काबू पाए। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं नाजरीन। हिम्मत, हौसले और अज़्म के सामने जिस्मानी माजूरी भी रुकावट नहीं बनती। दोनों हाथों से महरूम नौजवान तालिब इल्म ने FSC के इम्तिहान में पाँव की मदद से पर्चे हल किए, 954 नंबर हासिल करके मिसाल कायम कर दी है। तालिब इल्म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान से कोटे पर मेडिकल कॉलेज में दाखिला देने की अपील भी की है। नूरुल आरफीन की रिपोर्ट। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान। जिला पशीन से ताल्लुक रखने वाले सैयद रफीउल्लाह पैदाशी तौर पर दोनों हाथों से महरूम हैं, लेकिन इस जिस्मानी माजूरी ने उनके हौसले को कभी कमजोर नहीं किया। उन्होंने पाँव की मदद से FSC के तमाम पर्चे हल किए और शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 1100 में से 954 नंबर हासिल किए। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान एंड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये गुजारिश है कि मुझे स्पेशल मेडिकल कोटे में दाखिला दे और स्पेशल सीट पे मुझे दे। इंशाल्लाह मेहनत करता रहूँगा, मेहनत नहीं छोड़ूंगा। रफीउल्लाह की ये कामयाबी सिर्फ उनकी नहीं बल्कि पूरे खानदान के लिए बाइसे फख्र है। लोग हमें अपने नाम से नहीं पहचानते, क्या रफीउल्लाह की वजह से हमें पहचाना जाता है कि रफीउल्लाह के फादर है, ये रफीउल्लाह की फैमिली है। और आज मुझे खुशी महसूस हो रही है कि एज ए बतौर वालिद मैं रफीउल्लाह का वालिद हूँ। सैयद रफीउल्लाह सिर्फ पाँव से खूबसूरत तहरीर ही नहीं लिखते बल्कि मोबाइल फोन और कंप्यूटर भी इसी महारत से इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी चलाने के साथ साथ रोजमर्रा के तमाम काम भी वो अपने पाँव की मदद से खुद अंजाम देते हैं। क्वेटा में वाटर टैंकर एसोसिएशन ट्रैफिक पुलिस के रवैये के खिलाफ सरापा एहतजाज है। पानी की सप्लाई रोकने की धमकी दे दी है। ट्रैफिक पुलिस हुकाम का कहना है कि कवानीन की खिलाफ वर्जी पर कंटेनर ड्राइवर्स को गिरफ्तार किया गया था। मोहम्मद आतिफ की रिपोर्ट। गिरफ्तारियों, चालान और जुर्मानों के खिलाफ कोयटा में वाटर टैंकर एसोसिएशन ने पानी की सप्लाई मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। कहते हैं कि लाइसेंस, कागजात और वक्त की पाबंदी होने के बावजूद कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमारे साथ नाजायज रवैया इन लोगों ने अपनाया हुआ है। वासाओ, वाबडाओ, पुलिस और ट्रैफिक वाले, उनके अगेंस्ट हम लोग अपने कारोबार को बंद कर रहे हैं। कोई हड़ताल नहीं कर रहे, हम लोग अपना कारोबार बंद कर रहे हैं। अपने नाकामी को छुपाने के लिए ये लोग ये काम कर रहे हैं कि भाई कम उम्र ड्राइवर चला रहे। ये सरासर झूठ है। अगर जो भी हो उनके अगेंस्ट कार्रवाई कर ले। दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस हुकाम का मौक़िफ़ है कि वाटर टैंकर ड्राइवर बार बार आगाही देने के बावजूद कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिस पर 12 ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया था। कैमरामैन शहजाद अनवर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा।
और जी सावन की आमद ने फिजा को एक नई ताजगी बख्श दी है। हर तरफ बादलों का बसेरा है, मौसम खुशगवार है। ये वो मौसम है जो बचपन की हसीन यादों को ना ताज़ा कर देता है। बिल्कुल ऐसा ही है। लाहौर से वैलरिंग एंड्रयूज की रिपोर्ट देखते हैं। घंघोर घटाएं, ठंडी हवाएं, आसमान से उतरती बूंदें और मिट्टी की सूंधी खुशबू बता रही है कि सावन की रुत अपने पूरे जोबन पर है। बच्चों के लिए सावन तो खुशियों का समा है। कहीं बारिश में नहाना, कागज की कश्ती चलाना और कहीं छतों पर बारिश से लुत्फानंदोज होने की रवायात आज भी जिंदा है। यही नहीं, इसे हसीन यादों का मौसम भी कहा जाता है। साल भर सावन की झड़ी का इंतजार रहता है। जब हम छोटे थे तो हम लोग पानी की में कागज़ की कश्तियाँ वगैरह बनाते थे। अब तो हमें बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। हम बहुत ज़्यादा मौसम एंजॉय कर रहे हैं। सावन के मौसम में हम लोग ना बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और हम लोग अपनी मम्मा से डिमांड वगैरह करते हैं, हमें समोसे पकोड़े इस तरह की चीज़ें लेके खिलाएं हमें। जो बचपन की यादें थी ना, वो एक गज़ल बनी हुई है कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो ये एक लम्हे के लिए मुझे उसकी भी याद ताज़ा करा